Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to see the lecture number 4 of chapter 1 linear equations in two variables. इस lecture में हम theoretical problems practice set 1.4 देखने वाले हैं which are the applications of simultaneous equation. So let's see. Practice set 1.4. इसमें first question है two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. ठीक है, इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो इसमें लिखा है टू नंबर्स डिफर बाय 3. मतलब कोई दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस जो है अगर हम उन दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस 3 आएगा. और द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स जो उन दोनों में से स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस और थ्राइस द ग्रेटर नंबर विच इज़ greater number, thrice of greater number, and their sum is 19. So find the numbers. So वो नंबर कौन से हैं वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, so the answer is let assume that the smaller number be x and the greater number be y. So according to the first condition, what is the first condition? Two numbers differ by 3 means अगर हम उन दोनों नंबर स्मॉलर और ग्रेटर नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे then which is equal to 3. Okay, so greater number is y, we considered it as y, so y minus smaller number x which is equal to 3. y minus x because y is greater, और greater में अगर smaller सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा which is 3. so y minus x is equal to 3. we can also write it as इस x को अगर हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस कर दें तो माइनस वाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा. हम पूरे इक्वेशन के साइन चेंजेस भी कर सकते हैं, हमें सभी को माइनस अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अगर इस पूरे इक्वेशन को हमने माइनस दिया तो माइनस वाई हो जाएगा और ये माइनस एक्स माइनस माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई, और 3 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो इट इज़ माइनस 3. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 विल बी आवर इक्वेशन. ओके, एक्स माइनस वाई is equal to minus 3. This is the equation number 1. Okay, so we see the second condition. What is the second condition? The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Smaller number is a x, उसका twice x है smaller number, उसका twice. Sum means addition, sum of twice the smaller number 2x plus and the thrice the greater number, y is the greater number, so thrice of greater number that is 3y is equal to 19. So we get the second equation. This is the second equation. So on solving the equation 1 and equation 2 we get the answer. So let's see equation 1 and equation 2. Now let's solve the equation 1 and 2. From this we see that equation 1 and equation 2 there is a subtraction sign in equation 1 and here is a plus 3y. There is a no same numbers. Okay, so we multiply equation 1 by 3. Multiply equation 1 by 3. Okay, we get 3x. After multiplying this 3 by x, 3 into x, then it will be 3x and 3 by y, minus है subtraction sign है 3y which is equal to 3 into 3 9, minus है तो minus 9. we call this as equation 3. Okay, so here see here
यहाँ पे कोएफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, कोएफिशिएंट सेम और वेरिएबल सेम, और जो साइन है वो अपोजिट है, सो वी कैन कैंसिल इट आउट ईजीली. सो डायरेक्टली ऐड करेंगे, बिकॉज साइन अपोजिट है तो कैंसिल होंगे, इसलिए हम ऐड करेंगे. अगर साइन सेम होते तो हम सब्सट्रैक्ट करते, और सो दैट जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता और दोनों हम कैंसिल आउट कर सकते थे. अब यहाँ पे साइन ऑलरेडी अपोजिट है, सो वी विल डायरेक्टली ऐड देम, एंड सो दैट द आंसर can be calculated. So next we get equation 2 and equation 3. I wrote it here. So equation 2 ये था और equation 3 ये था. So यहाँ पे 2x और 3x है, so इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आएगा, और 3 + 3y है और -3y है, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. और यहाँ पे 19 - 9 which is equal to 10. So x is equal to 10 divided by 5 which is equal to 5 to the 10. So we get the answer x is equal to 2, and putting the value of 2, that is x, in equation 1, we can get the values of y. So x minus y is equal to -3, which was the equation 1. So we will put x is equal to 2 in equation 1. So 2 minus y is equal to -3. So minus y is equal to -3 -2. माइनस दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +5. और जो इन दोनों में से ग्रेटर है उसका साइन क्या है, माइनस, सो वी विल पुट इट हियर माइनस. सी इफ़ देयर इज़ अ -4 और -5, सो वी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन होगा. 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 9. और ये जो बड़ा है इसका साइन क्या है, माइनस, सो वी गिव इट माइनस. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन डू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस. ओके. सो आफ्टर इट यहाँ पे -y इज़ इक्वल टू -5 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 + 2 5, और नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर हैज़ अ नेगेटिव साइन. सो माइनस माइनस कैंसल्ड, y इज़ इक्वल टू 5 आएगा. ठीक है. सो therefore we get the answer. Therefore the smaller number be x is equal to 2 and the greater number be y is equal to 5. Means the smaller number हमने x assume किया था which is equal to 2 and greater number हमने y assume किया था which is equal to 5. Hence the solution is 2, 5. Okay. Okay. Second question is complete the following. Okay. There is a flow chart. ओके. ये इस बॉक्स में आना चाहिए था और ये भी, सो प्रॉब्लम हो गया. ठीक है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. ओके. सो I am a rectangle. Here is given that this is a consider this as this is the rectangle. Okay. This is the rectangle. Okay. So let's see. This is a rectangle. It says that I am a rectangle, so hence its sides are, this is the breadth and this is the length. So breadth is x plus 4 and 2y. Rectangle has the same opposite sides. Okay. Hence x plus 4 and 2y, both these are equal, and length is also same. Hence 2x plus y plus 8 which is equal to 4x minus y. Hence opposite sides are
equal. Okay, square has all sides equal, so but the rectangle has only opposite sides equal. So find the values of x and y, find the perimeter and area. Okay, find the perimeter and area. Okay, so we will find, as we know the opposite sides of rectangles are equal, and therefore from first condition, what is the first condition? Opposite sides are equal, we know already. So here is a 2y and x plus 4, so both these are equal. Hence okay, here is it is written that 2y is equal to x plus 4. So we can simplify this equation. I will write it here. X plus 4 equal to 2y. We can write it in the form of x and y. So x minus 2y, ये 2y इधर आ गया तो minus 2y, which is equal to 4, इस साइड गया तो -4. ठीक है, so x minus 2y is equal to -4. This is our equation 2. Okay, we can calculate equation and another equation. So these are the opposite sides, we can take this as opposite sides, and which are equal. Hence 2x plus y plus 8 equal to 4x minus y. So we can simplify this equation. How will we simplify it? Okay, so it is written that 2x plus y plus 8 equal to 4x minus y. See here, इस y x को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? प्लस y. सो y और प्लस y दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे. ठीक है, 2x प्लस 2y. आर यू गेटिंग इट? दिस इज द माइनस y. When it comes to right side, left side, it will become plus y. So plus y 2y हो जाएगा और इक्वल टू 4, और ये 8 इस तरफ आ जाएगा तो -8, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंट साइन है. डिफरेंट साइन मीन्स सब्सट्रैक्शन. अगर सेम साइन हो तो एडिशन हो सकता है, और डिफरेंट साइंस हो तो ऑलवेज सब्सट्रैक्शन. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, सो 4 गया तो -4 विल बी देयर. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. सॉरी गाइज, यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x minus y. Okay, so our equation 1 is, यहाँ पे 4x था, so this is a 4x. Okay, this cannot be subscribed, I'm sorry. So this is a 4x. This 4x, wait, ठीक है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x. ठीक है, दिस 4x, इस 2x को हम इस तरफ, 4x माइनस 2x माइनस वाई, और ये y इस तरफ आ जाएगा तो ये भी माइनस वाई, विच इज़ इक्वल टू 8 होगा. ठीक है, सो 2x में 2x गया तो 2x माइनस 2y, which is equal to -8. Okay, so this is a, sorry, plus 8. Okay, प्लस 8 जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा. सिर्फ हमने 4x इस 2x को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, सो दैट -2x, एंड इस y को इस तरफ आ गया तो -y. सो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, और -y -2y. अगर सेम साइंस है तो एडिशन. ठीक है, y और y, 2y -2y विच इज़ इक्वल टू 8. ओके, सो देन
एक्स और वाई दोनों इक्वेशंस मिल गए तो इजी मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. नाउ सी हियर, यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है और यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 है. यहाँ पे सेम साइंस है, सेम साइंस होंगे तो ऐड होंगे ना, तो कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू पुट देयर सब्सट्रैक्शन साइन सो दैट द इक्वेशन होल इक्वेशन विल बिकम नेगेटिव. सी, अगर हम किसी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इन ब्रैकेट x माइनस 2y इक्वल टू -4 है. ठीक है, ये इस होल इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस 4y. सो दिस विल द चेंज. ओके, so that we can see here. Now see this equation and the equation 1. We see that here is a plus 2y and here is minus 2y. So we can easily cancel out minus 2y plus 2y cancel हो जाएगा और 2x minus x equal to x आ जाएगा which is equal to 8 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा. ठीक है, let's see subtracting equation 1 and 2. so we get, अगर हम यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8. सब्सट्रैक्ट 8, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू -4. सो 2y यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो x रहेगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस. ओके, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा. ठीक है, x इज इक्वल टू 12. So we got the answer x. Then we can use the same method, put the value of x in any of the equation. Here I put it in equation 2. So equation 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 माइनस 2y इज इक्वल टू -4. सो माइनस 2y, ये 12 इस तरफ जाएगा तो -12 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस सेम साइन तो एडिशन विच इज़ इक्वल टू 16 और greater number has a minus sign, so the answer will be in a negative. Okay, so 2y is equal to 16 and y is equal to 16 divided by 2 which is equal to 8. We got the values of x and y, therefore the value of x is 12 and the value of y is 8. So now यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है आई एम अ रेक्टेंगल और इसका एक साइड का वैल्यू जो है वो x प्लस 4 है और एक दोनों अपोजिट साइड्स है, हेंस दे आर इक्वल, हेंस x प्लस वाई और 2y दोनों इक्वल होंगे. सो वी कैन फाइंड द एनी वन फ्रॉम दिस. ओके, वी कैन सी द x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर 2y की वैल्यू. सो और ये दोनों सेम अपोजिट साइड है, सो ये दोनों इक्वल होंगे. सो 4x माइनस वाई निकाले या फिर 2x प्लस वाई प्लस 8 निकाले, दोनों सेम होगा, वो लेंथ का वैल्यू होगा. ठीक है, सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x माइनस वाई है, इस इक्वेशन में दिया है 4x माइनस वाई इज द ब्रेड्थ. 4x माइनस वाई इज़ द लेंथ. सो 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 12 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 12 8 ज़ा 48, सॉरी 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 40. और ब्रेड्थ कितना होगा, ब्रेड्थ है यहाँ पे 2y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर x प्लस वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एज यू विश. ओके, so 2y will be calculated.
2y is equal to, so 2y is equal to 2 into y की वैल्यू हमने निकाली 8, so which is equal to 16. So the breadth is 16 and the length is 40. We calculated it. So उन्होंने हमें पेरीमीटर निकालने के लिए भी कहा है और एरिया. So what is the perimeter? Perimeter P is equal to 2 into length into breadth. Okay. Two into length into breadth. Okay. Which is equal to 2 into लेंथ कितना आया था हमारा 40 प्लस 16. ओके. लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है यहाँ पे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब पेरीमीटर मतलब ऑल साइड्स, जो किसी भी शेप के जितने भी साइड्स हो उन सब का एडिशन, दैट इज़ द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर में 2 लेंथ्स होंगे और 2 ब्रेड्थ्स होंगे. सो 2 into length plus breadth, so 2 into 40 plus 60 which is 56 into 2 that is equal to 112 यूनिट. यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया इसलिए हम डायरेक्टली यूनिट ही लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे. ठीक है. सो इफ़ नथिंग इज़ गिवन वी राइट इट एज ए यूनिट. सो पेरीमीटर इज़ 112 यूनिट. Now we will calculate the area. Area, you all know, area is equal to length into breadth and area of square is a side square. कोई भी साइड लो और उसको स्क्वायर करो. और रेक्टेंगल के लिए हम, रेक्टेंगल का एरिया के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं. ठीक है. लेंथ कितना है 40 इंटू ब्रेड्थ 16 विच इज़ इक्वल टू 640 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है क्योंकि स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर इज़ नॉट गिवन, सो वी कॉल दिस एट स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर क्यों, यहाँ पे भी इसका जो यूनिट होगा और इसका जो यूनिट होगा दोनों यूनिट्स मिलके स्क्वायर हो जाएगा. सो स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया. ओके. एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. सो द आंसर इज 640 यूनिट. ओके. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Third question. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. Okay. So, यहाँ पे क्या कहा है? The sum of father's age and twice the age of his son. फादर का जो एज है उसमें अगर हम 2 टाइम्स सन का एज ऐड करेंगे सो इट इज़ 70. ओके. सो वी कॉल दिस एट द फर्स्ट कंडीशन. एंड द सेकेंड कंडीशन इज इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, ट्वाइस द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज़ 95. So we call this as the second condition and then we'll find their present ages. So let's assume the father's age be x and the son's age be y. So from first condition, what is the first condition? Sum of father's age. We call it as father's age as x. Then sum of father's age, that is x, and twice the age of his son. Age of son is y. So 2y, twice the age of son is 2y, so which is equal to 70. We call this as equation 1. So from second condition, what is the second condition? If we double the age of father and add it to age of the son and their sum is 95. So double the age of father and add it to the age of son, which is y, it is equal to 95. So we got this two simultaneous equation. We can easily find their value of variables. Okay. So as usual, as we solve the simultaneous equation,
we will multiply any of the equation by 2, because here is also 2 and here is also 2. We can multiply this equation by 2 or either this equation by 2. Okay, ठीक है. So multiply this equation by 2. You can multiply equation 2 by 2. What is the equation 2? This equation is multiplied by 2. So we get 4x plus 2y is equal to 195. Here is the equation 2. So we multiply it by 2. 2 to the 4x, 2y and 95 into 2, which is equal to 190. So we call this equation number 3. Okay. Now we got the equations. So we can directly, as the signs are same, so it cannot be cancelled. So we have to change the sign of this equation. Means we will subtract it. Okay, so that the signs of this equation will change. So see here, this is a 4x plus 2y equal to 190, or x plus 2y equal to 70. Okay, we are subtracting it. So for subtracting it, यहाँ पे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, दोनों प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा. सो दिस माइनस विल गोज एंड हियर माइनस विल कम, एंड दिस माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस. सो माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा. ठीक है. सो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल. 4x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 3x विच इज़ इक्वल टू 190 में अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 70 माइनस करेंगे तो 120. सो वी कैन गेट द वैल्यूज़ 120 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 40. Okay, it is equal to 40. So we can put the value of x and we get the values of y. So equation 1 में put करेंगे. So 40 plus 2y which is equal to 70. Okay, so 40 plus 2y is equal to 70. Hence 2y is equal to 40 इस तरफ जाएगा तो minus 40 which is equal to 30, and y is equal to 30 divided by 2 which is equal to 15. Therefore the present age of father is x, which we calculated as x is equal to 40, and the present age of his son is y, which is equal to 15. Okay, so the next is फोर्थ और फिफ्थ आप सॉल्व कर सकते हैं. मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन लिया है. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. ठीक है. So let's see. एक डिस्टेंस है विच इज़ 1900 किलोमीटर. ओके, इस 1900 किलोमीटर डिस्टेंस को विशाल ने 2 व्हीकल्स यूज़ करके ट्रैवल किया. मतलब इसमें से कुछ डिस्टेंस उसने बाय बस ट्रैवल किया और थोड़ा सा डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया. और बस से जो ट्रैवल किया विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड बाय एरोप्लेन इट वाज 700 किलोमीटर पर आवर, एंड इस टोटल जर्नी में उसे टाइम लगा 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. सो उन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस. सो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने ये पूछा है. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए. सो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है
वी कॉल दिस डिस्टेंस एज द 1900 किलोमीटर. सो इसमें से आधा डिस्टेंस विशाल ने बाय बस ट्रैवल किया और थोड़ा सा डिस्टेंस, मीन्स आधा नहीं कहेंगे बिकॉज वी डोंट नो. सो कुछ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर बाय बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस 700 किलोमीटर पर आवर बाय एरोप्लेन से ट्रैवल किया. सो वी कॉल दिस एज एक्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस एंड वाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन. हम इससे कहेंगे कि x डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस एंड y डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन. ओके, वी अज्यूम इट. लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस एंड द एरोप्लेन बी x एंड y. उन्होंने हमें पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस. ओके, सो let the distance traveled by bus and the aeroplane be x and y respectively. So अब x और y डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सॉरी वी कॉल दिस इक्वेशन x टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस. 60 किलोमीटर पर आवर से जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसे ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा मीन्स x, वी कॉल इट x. ओके, एंड जो डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया 700 किलोमीटर पर आवर, उसे ट्रैवल करने के लिए y कहेंगे हम, y टाइम लगा. ठीक है, सो टोटल जर्नी में 5 आवर्स लगे. सो x आवर्स बस से ट्रैवल किया और y आवर्स एरोप्लेन से ट्रैवल किया. ठीक है, और x टाइम में कितने स्पीड से गए 60 किलोमीटर पर आवर और y टाइम से 700 किलोमीटर पर आवर गए और टोटल जर्नी का डिस्टेंस है वो 1900 किलोमीटर है और टोटल टाइम जो लगा है दैट इज़ x डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर गए, x टाइम में 60 किलोमीटर पर आवर गए और 700 किलोमीटर पर आवर y टाइम में गए. So x plus y which is equal to 5 hours. Are you getting it? So what is it? I will tell it in simple form. Okay, एक विशाल है, उसने पूरा 1900 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल किया है. इसमें उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से. ठीक है, सो पूरे जर्नी के लिए उसे टाइम लगा है 5 आवर्स. सो हम इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए टाइम रखेंगे x और एरोप्लेन से जितना टाइम उसने ट्रैवल किया वी कॉल दिस एज y. ठीक है, और इन दोनों का सम विच इज़ इक्वल टू 5 आवर्स. ठीक है, टोटल जर्नी 5 आवर्स में कंप्लीट की विशाल ने. ठीक है, सो आर यू गेटिंग इट? वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1. x plus y is equal to 5. This is the equation number 1. Okay, as you know that speed equal to distance upon time. सो इसमें से हम टाइम निकाल सकते हैं. इस t को अगर इस तरफ जाएगा तो t इज़ इक्वल टू, इसमें से हम डिस्टेंस निकालेंगे, t इस तरफ जाएगा तो d इज़ इक्वल टू s इंटू टी. सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को. ठीक है, यहाँ पे 1900 किलोमीटर दिया है. सो distance traveled by bus, we can calculate distance traveled by bus which is distance traveled by bus निकाल रही हूँ मैं. distance is equal to speed into time. speed कितना था 60 और टाइम कितना लगा x.
so 60x. And distance traveled by aeroplane, we call this as DA, which is speed कितना था 700 और time कितना लगा y, so 700y. Are you getting it? So distance traveled by bus, which is equal to 60x, and distance traveled by aeroplane, which is equal to 700y. So see here, let the time taken by bus be x hours. Time taken by bus to travel be x hours, and the time taken by aeroplane to travel be y hours. Hence, according to first condition, total time for the journey is 5 hours. Hence, x plus y is equal to 5 hours, which is equation number 1. And then average speed of bus. Speed is equal to distance into time. Speed is equal to distance upon time. And distance is equal to speed into time. So, the average speed of aeroplane is 700 km per hour. Okay. Total distance covered is a 1900 km. So, distance covered by bus. Distance speed दिया है 60 for bus और 700 for aeroplane. सो डिस्टेंस निकालना है क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें 1900 किलोमीटर दिया है. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कितना था 60 इनटू टाइम कितना लगा x. सो 60x. डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन से कितना डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वेलोसिटी कितना था 700 इनटू टाइम कितना लगा y. सो 700y. सो वी नो दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब ये जो 700y है और ये 60x है, इन दोनों का सम मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज़ इक्वल टू 1900 किलोमीटर. मीन्स टोटल डिस्टेंस जो पूरी जर्नी 1900 किलोमीटर्स की है. सो कुछ डिस्टेंस उसने 60 वेलोसिटी से ट्रैवल की है एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट इज x. एंड कुछ डिस्टेंस उसने 700 वेलोसिटी से ट्रैवल की है एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ y. सो देयर सम इज़ 1900 किलोमीटर. ओके. Total distance covered is equal to 60x plus 700y, which is equal to 1900 kilometer. So we can see the equation. See यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला 60x plus 700y is equal to 9 किलोमीटर. इन दोनों में अगर हम 10 इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल और एक 0 कैंसिल हो जाएगा. सो 6 प्लस 70y इक्वल टू 190 हो जाएगा. ठीक है, हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ज़्यादा ज़ीरोज़ बड़ा होगा तो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा. सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट. सो विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 10. सो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो 6 प्लस 70y इज इक्वल टू 190. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड वी हैव द इक्वेशन नंबर x plus y इज इक्वल टू 5. सो इन दिस इक्वेशन, so we can solve this equation by simultaneous equation method. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 70 से, क्यों यहाँ पे 70 है, इसे 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें x की वैल्यू भी पूछी है. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस पूछा है, इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे. सो 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद 70x प्लस 70y विच इज़ इक्वल टू 350 आएगा. वी कॉल दिस इक्वेशन 3 एंड देन वी विल सब्सट्रैक्ट बिकॉज देयर इज़ अ सेम साइन. सो अगर सेम साइन होगा तो कैंसिलेशन नहीं होगा. सो वी विल सब्सट्रैक्ट इट. सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट 70
64x is equal to 160. Hence x is equal to 160 डिवाइडेड बाय 64. इसे सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू आएगा हमारा आंसर आएगा 2.5. सो इस 2.5 को हम डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फाइंड करने में यूज़ करेंगे. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना था, यहाँ पे है, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस विच इज़ इक्वल टू 60x. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस which is equal to 60x. hence x की वैल्यू क्या आई 2.5. सो 60 into 2.5 which is equal to 150 kilometer. Okay, so the distance covered by bus is 150 kilometer.